دوسری جانب کشتی ڈوبنے سے 10 ماہی گیر تاحال لاپتہ ہیں۔ اہل خانہ غم سے نڈھال۔ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے 4 لاشیں نکالی۔ ترجمان کوسٹل کمال شاہ کے مطابق لاشوں کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ ابراہیم حیدری میں لاپتہ ماہی گیروں کے اہل خانہ کا احتجاج، اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ ترجمان کوسٹل میڈیا سیل کمال شاہ کے مطابق لاشوں کو کراچی منتقل کیا جائے گا۔ لاشیں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے نکالی گئی ہیں۔ کچھ گھنٹوں تک لاشوں کو کراچی منتقل کر دیا جائے گا۔ لاشوں کی شناخت تاحال نہیں کی گئی ہے، جبکہ 10 ماہی گیر تاحال لاپتہ ہیں۔ گزشتہ دنوں کیٹی بندر کے قریب گہرے سمندر میں ماہی گیروں کی لانچ الٹنے سے 40 سے زائد ماہی گیر ڈوب گئے تھے، جن میں سے 13 ماہی گیروں نے پہلے ہی دن ان کو نکال لیا گیا تھا۔ 1 ماہ قبل اغوا ہونے والے 2 ڈرائیور بازیاب ہو گئے۔ اغوا کاروں نے سائٹ پر گاڑی کی فروخت کا اشتہار دے کر اویس اور شفقت کو اغوا کیا تھا۔ حساس اداروں اور گھوٹکی پولیس نے اغوا کاروں سے مقابلے کے بعد 2 مغوی ڈرائیوروں کو بازیاب کرا لیا۔ حساس اداروں اور گھوٹکی پولیس کو اغوا کاروں کی جانب سے مغویوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی اطلاع ملی تھی۔ اداروں کے اہلکار اور گھوٹکی پولیس پہنچی تو اغوا کاروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی فائرنگ پر اغوا کار مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ 1 ماہ قبل شفقت اور اویس نامی شہری سستی گاڑی خریدنے کے لیے اس کے جھانسے میں آ کر گھوٹکی کے کچے کے علاقے میں اغوا ہو گئے تھے۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کے 14ویں صدر کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی، جس میں سابق صدر عارف علوی، قائد نون لیگ نواز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، بلاول بھٹو، بختیار بھٹو، آصفہ بھٹو شریک ہوئے۔ آصف علی زرداری اور واحد سویلین ہیں جو دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I am a Muslim swear that I am a Muslim and believe in the unity and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, and oneness of Almighty Allah, the books of Allah, the books of Allah, the Holy Quran, the Holy Quran being the last of them, being the last of them, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of the prophets, as last of the prophets, and that there can be no prophet after him, and that there can be no prophet after him, the day of judgment, the day of judgment, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as President of Pakistan, that as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of the sovereignty, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being, and prosperity of Pakistan, that I will strive to preserve the Islamic ideology, دھیما مزاج اور لبوں پر مسکراہٹ رکھنے والے سیاست کے گرو آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک سندھی بلوچ سیاستدان اور ذوالفقار علی بھٹو کے ابتدائی سیاسی ساتھیوں میں شامل حاکم علی زرداری کے فرزند ہیں۔ مفاہمت کی سیاست کے بادشاہ آصف علی زرداری کے سیاسی سفر کو جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
आसिफ अली जरदारी ने इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक्स स्कूल कराची से हासिल की। आसिफ अली जरदारी अवाइल उम्री से ही कराची के मुतवव्विल हलकों में जाने जाते थे। 1968 में आसिफ अली जरदारी ने फिल्मसाज सज्जाद की उर्दू फिल्म मंजिल दूर नहीं में चाइल्ड स्टार के तौर पर भी अदाकारी की। सियासत से आसिफ अली जरदारी का सन 80 के वस्त की तक कोई वास्ता नहीं था। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में सूबाई असम्बली की एक नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, मगर ये कागजात वापस ले लिए गए। आसिफ जरदारी के लिए 1987 में फैसला कुन साल था जब उनकी सौतेली वालदा टिम्मी बुखारी और बेगम नुसरत भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ रिश्ता तय किया। 18 दिसंबर 1987 को होने वाली ये शादी कराची की एक यादगार तकारीब में शुमार होती है। 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो बरसरे इक़्तिदार आई तो आसिफ अली जरदारी भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुंतकिल हो गए। यूँ उनकी सियासी ज़िंदगी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुई। 1990 में बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी के बाद होने वाली इंतखाबात में वो रुकन कौमी असम्बली बने। 1993 में वो निगरां वज़ीर-ए-आज़म मीर बलखशेर मज़ारी की काबीना में वज़ीर बने। फिर बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर में रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर माहौलियात व सरमायाकारी रहे। वो 1997 से 1999 तक सेनेट के रुकन भी रहे। 5 नवंबर 1996 को दूसरी बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी के बाद आसिफ जरदारी का नाम मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में आया। आसिफ जरदारी तकरीबन 11 बरस जेल में रहे। वो 10 अक्टूबर 1990 बरोज़ बुध पहली बार गिरफ्तार हुए। 2 साल 3 माह 6 दिन की कैद के बाद 6 फरवरी 1993 को रिहा हुए। 4 नवंबर 1996 को दूसरी बार गिरफ्तार हुए। 8 साल 18 दिन जेल में रहकर 22 नवंबर 2004 को रिहा हुए। जेल में आसिफ अली जरदारी मरकजी निगाह रहे। आसिफ अली जरदारी ने सितंबर 2008 में मनसब सदारत का हल्फ उठाया। उस वक्त के चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने इनसे हल्फ लिया। सितंबर 2013 में अपने मनसब की आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद आसिफ अली जरदारी बावकार अंदाज से रुखसत हो गए। इनके मनसब सदारत के दौरानिये में 3 वज़ीर-ए-आज़म ने इनके साथ काम किया। हमेशा सबको जोड़ने की बात की, पाकिस्तान की बात की, करता रहूँगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मईशत कमज़ोर और मुल्क सियासी इंतशार का शिकार रहा। मामलात के जोड़ने की बहुत कोशिश की। मैं एहतसाब पर कायम हूँ, एहतसाब होना चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना चाहते हैं तो चलाएं। ये है कि हर कोशिश वो करूँ कि मुल्क के मामलात को सही तरफ, सही सिमत ले जाया जाए, मुल्क को जोड़ा जाए, मुल्क के अंदर जो मुनाफरतें बढ़ी हैं उनको कम किया जाए और मुल्क का ने जो मैंडेट का इजहार किया है, जिस अंदाज से भी किया है, उस मैंडेट की कदर की जाए। मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया। राब्ता कमेटी की तंजीम 9 और कौमी और सूबाई असम्बली में अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर्स के इंतखाब का मामला। MQM पाकिस्तान की एड हॉक कमेटी की अहम बैठक कल होने का इम्कान। तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक एड हॉक कमेटी की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बली में अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर होगा। आइंदा चंद रोज़ में MQM पाकिस्तान की जानिब से तमाम शोबा-ए-जात, सूबाई कमेटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन्स, टाउन्स और यूसीस की तंजीम 9 भी की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक से कबल शहर में पानी के मसाइल संगीन हो गए। कोरंगी सेक्टर 33C में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। कोरंगी 33C का इलाका किल्लत आब का शिकार। इलाका मकीनों की पानी के लिए दुहाइयाँ। कोरंगी 33C में बरसों से जारी पानी की किल्लत शदीद हो गई। इलाका मकीन कहते हैं पानी की किल्लत से घरेलू उमूर मुतासिर, पानी खरीदने से अखराजात बढ़ गए। आमदनी का एक हिस्सा पानी की नजर होने लगा। पानी खरीदे या गैस खरीदे या बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, या पेट में डाले या बच्चों का पेट दे, या इनकी फीसें भरे। क्या क्या करें हम लोग? तो आता नहीं है, 10 सालों से 20 सालों से पानी नहीं आता है। हम खरीद के पीते हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि पानी के मसाइल के हल के लिए कई बार वाटर कॉर्पोरेशन के दफातर के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सिर्फ दिलासे मिलते हैं। 18 साल हो गए, 17-18 साल हो गए, पानी आता ही नहीं यहाँ। बस सर्दी पानी आता है, उसके बाद गर्मी शुरू होती है, पानी खत्म हो जाता है, जड़ से चला जाता है पानी। हमने बहुत मेहनत की है, वाटर बोर्ड के MD हो गए और GM वगैरह हम सबके पास गए, लेकिन सब हमें यही लॉलीपॉप देते हैं कि इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना पानी का मसला हल हो जाएगा। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि किल्लत आब को फौरी खत्म किया जाए ताकि माह मुबारक में सुकून से इबादत की जाए। कैमरामैन फरहान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गैस मसाइल ने कोरंगी 2.5 नंबर के मकीनों को परेशान कर दिया। इलाके में गैस पाइपलाइनें और मीटर तो मौजूद, लेकिन 2 बरस से गैस नहीं है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए।
कोरंगी 2.5 नंबर में गैस नायाब, शहरी अजियत का शिकार। इलाका मकीन खाने की तैयारी के लिए लकड़ियां और LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। इलाके की खवातीन कहती हैं लकड़ियों पर खाना बनाने से आजिज आ गए। लकड़ियों से उठते धुएं से आंखें मुतासिर हो गई, सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। गैस के बिल सैकड़ों में नहीं हजारों में आते हैं। LPG सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए। किसी घर में लकड़ियाँ जल रही, किसी के घर में सिलेंडर जल रहे हैं। सिलेंडर भी हर हफ्ते के 1000-1200 से कम का नहीं जल रहा है, बताऊँ। अब वो भी 6-7 हज़ार के सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं महीने के, और 4-5 हज़ार का बिल आ रहा है। वो कहते हैं कि भाई गैस पीछे से प्रेशर नहीं है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, लाइनें खराब हैं, आपकी पुरानी लाइनें हो गई हैं। तो भाई तो किसका काम है ये? गैस वालों का ही काम है ना। सांस के भी होते हैं, धुआं उठता है, आंखों से पानी आने लग जाता है। अब बताए कब तक परेशान हो गए, छोटे बच्चे हैं। थोड़ी बहुत आ भी रही थी, रात में आ जाती थी गैस, लेकिन अब तो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि गैस मसाइल को फौरी हल किया जाए। कैमरामैन फरहान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रमज़ान से कबल ही फ्रूट मंडी में महंगाई का तूफान आ गया। सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज, किन्नू, सेब, अमरूद, स्ट्रॉबेरी समेत हर फल की कीमत आसमान से बातें करने लगी। काफिश मेमन की रिपोर्ट है। रमज़ान की आमद फ्रूट माफिया शहरियों को लूटने के लिए तैयार। महंगाई के तूफान ने फ्रूट मंडी को अपनी लपेट में ले लिया। फलों की कीमत में इजाफा, स्ट्रॉबेरी 250 से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गई। गोल्डन सेब 300 के बजाय 350 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। गरमे की पेटी 1200 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए हो गई। अमरूद की पेटी भी 2000 रुपए में फरोख्त होने लगी। मंडी के ताजिरों का कहना है कमिश्नर कराची मंडी का जायजा लेकर कीमतों का तयन करें। हर चीज की कीमत बढ़ गई, सरकारी कीमत पर किस तरह अमल किया जाए। कमिश्नर साहब ने इसका विजिट भी नहीं किया हुआ है कि क्या पोजीशन है और रेट ऊपर है नीचे है। वो वहाँ से ऐसे बेच देता है, मालूमात नहीं लेते और आवाम के ऊपर बड़ा बोझ है। जो जिसकी मनमानी है वो करते हैं, न लिस्ट चलता है न कुछ चलता है। ये बेकार मतलब लिस्ट लेके आता है, कुछ काम का नहीं है। रेट जब जारी होना चाहिए था ना, जब कल था 1000 रुपये, आज है 3200 का पेटी खरबजे का। आगे जाके क्या रेट बिकेगा? वहाँ पे तो आवाम ठेले वाले के ऊपर, पुलिस भी और ठेले वाले के ऊपर आ रहा है, आवाम भी आ रहा है, और यहाँ पे पूछने वाले कोई नहीं है। शहरी बोले दुनिया भर में रमजान में रिलीफ दिया जाता है, यहाँ रमजान का आगाज होते ही कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। उसूल नहीं है, बस रमजान में हर मुल्क में चीज़ नीचे आ रहा है, यहाँ पर ऊपर चल रहा है। अभी हर चीज़ जो है ना ऊपर जा रहा है, बहुत महंगा होता जा रहा है ना। माल खा मारे 18 दाने बीजू हो गया 2200 का, 2000 का 18 दाना बीजू। पिछले साल में वो मिल रहा था 1000-1200 का। तो हर मुल्क में जब है रमज़ान जब आ जाता है ना, तो वो लोग जो है मार्केटों में रेट सस्ता करते हैं, मतलब 100 में 10% सस्ता। और हमारे पाकिस्तान मंडी में यार उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है, पता नहीं ये वजह क्या है, हमें खुद भी पता नहीं है। एक जानिब कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट और दूसरी तरफ फ्रूट माफिया की मनमानी जारी। देखना यह है इस रमजान में इंतजामिया किस तरह अपने अहकामात पर अमल कराती है। कैमरामैन शाजिब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शाह फैसल टाउन कौंसिल ने आमदन में इजाफे के लिए निस्फ दर्जन से ज़ायद नए मकामात पर चार्ज पार्किंग फ़ीस आयद करने का फ़ैसला किया है। वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद कहते हैं कि फ़ैसले का मकसद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ़राहम करना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शाह फैसल टाउन के मकीन चार्ज पार्किंग के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि रेवेन्यू में इजाफे के लिए चार्ज पार्किंग का फैसला कर लिया गया। वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद का कहना है कि रेवेन्यू में इजाफे के लिए मुतादिद मकामात पर चार्ज पार्किंग वसूली शुरू होने जा रही है। चार्ज पार्किंग के हवाले से हमने साइडें देखने का बोला हुआ था, तो उसमें से एक साइड पे अभी काम चल रहा है, उनका चालान पेड हो चुका है। बाकी साइडें हम लोग को देख रहे हैं और इंशाल्लाह 6-7 साइडें और भी हमारे नज़र नहीं इंशाल्लाह आवाम के हक़ में रहेगा। ज़्यादा फ़ीस नहीं रखेंगे, बिल्कुल छोटी से छोटी 10 से 20 रुपए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई के सताए हुए हैं, मजीद टैक्स लगाने के बजाय डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद करप्शन को ख़त्म किया जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस हासिल शुदा रकम से आवाम फैसिलिटेट हो सकती है। उसकी वजूहत ये है कि ये सिर्फ आवाम पे बोझ डालने मुख्तलिफ तरीक़ेकार से ना,
कोई पार्किंग बना देंगे तो वो भत्ता हो जाएगा, वो भत्ता आपको भी पता है, भत्ता माफिया के पास जाएगा, लेकिन वो आवाम का तो उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, आवाम को तकलीफ ज़रूर हो जाएगी, ट्रैफिक जैम होंगे, बहुत सारे मामलात होंगे, गंदगी होगी, ये होंगे मामलात। शाह फैसल टाउन काउंसिल ने अवामी फलाह के कामों के हवाले से जो करारदादें मंजूर की हैं, उनमें से अवाम की नज़र में चार्ज पार्किंग के हवाले से तोसी की करारदाद को अवामी मफाद के खिलाफ करार दिया जा रहा है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने का अज़्म, तंजीमें भी मैदान में आ गई। लियारी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रमज़ान बचत स्टॉल लग गया। आगरा ताज कॉलोनी में लगने वाले सस्ते राशन स्टॉल पर चीनी 130 रुपये, घी और कुकिंग ऑयल 400 रुपये किलो में दस्तयाब है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई से परेशान आवाम के लिए सस्ता राशन स्टॉल सज गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आगरा ताज कॉलोनी में कायम सस्ते राशन स्टॉल पर चीनी 130 रुपए किलो, घी और कुकिंग ऑयल 400 रुपए किलो, सुपर आटा 5 किलो 800 रुपए, 125 ग्राम की चाय की पत्ती 110 रुपए, सफेद चने 270 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा शकील पटनी ने कहा कि ताजिरों ने मार्केटों में रश देखकर अजनास की कीमतें बढ़ा दी हैं। महंगाई के दौर में बड़े ताजिर आवाम को रिलीफ दें। आवाम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तकरीबन 1500 घर के लिए हमने जो राशन ये बनाया गया था, अल्लाह का शुक्र है आपके सामने कैंप पूरा खाली हो चुका है और आवाम को सस्ता लगा तभी आवाम ने खरीदा है। मार्केट से कमों पे 20 से 25% कम डिस्काउंट पे ये राशन दिया जा रहा है। लेकिन हमारे ताजिर लोग को भी मेरा पैगाम है कि आप लोग आवाम को रिलीफ दें, सस्ता करें, ना कि 5-10 रुपए बढ़ाएं बल्कि कम दे, क्योंकि पब्लिक रमजान महीने में आपसे रिलीफ चाहती है। राशन स्टॉल इंतजामिया ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किया गया है। रियायती नरखों पर अशिया फरोख्त कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से कैंप लगाया गया है, तो इसमें यही है कि हम लोगों को खुद चीज़ें इतनी आगे से महंगी मिली, हम क्या करें। कल हम लोग जो मार्केट गए, उन्होंने ताजरों ने 10-20 रुपये और बढ़ा दिए, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये महंगाई को थोड़ा कम किया जाए, अवाम बहुत परेशान है। शहरियों की बड़ी तादाद ने बचत स्टॉल से अशिया खरीदी और इसे बेहतरीन इकदाम करार दिया। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची के साहिल पर बच्चों की मौज मस्तियाँ, गाने, खाने के स्टॉल्स और कार्टून कैरेक्टर्स के लिए किड्स फन फेस्ट का इनेकाद किया गया है। रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। छोटा सा बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े, कोई बना शेफ तो किसी ने खेली शतरंज की बाजी। कराची के साहिल पर किड्स फन फेस्ट सजा तो बच्चों के मजे आ गए। कोई जंपिंग कैसल पर खूब उछला तो किसी ने मिट्टी से बर्तन तैयार किए और मनपसंद कार्टून कैरेक्टर्स के साथ खूब मजे उड़ाए। किड्स फेस्ट में बच्चों के साथ बड़े भी लुत्फानंदोज हुए। प्रोग्राम के मुंतजमीन बोले, तालीम के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी बच्चों के लिए अहम है। इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा होता, तो वी रियली नीड एक्टिविटीज़ फॉर किड्स। हमारे यहाँ ज़्यादातर फोकस रहता है खानों पर या स्टॉल्स पर, so we have come up with a very nice idea of just activities around the kids. We have shows lined up, we have activities. देखिए, बच्चों के लिहाज से तो ये पूरा प्रोग्राम ही हमारा फोकस ये था कि कमर्शियल बेस ना हो, बच्चों फोकस हो, सेंट्रल लो, बच्चा इज़ द फर्स्ट फोकस। एंड ऐसा है कि मतलब जो बच्चे पे कर रहे हैं तो दे नीड टू हैव, मतलब उनको इतना सामने से सपोर्ट मिले कि उनको ऐसा लगे कि हाँ इट्स वर्थ इट। बच्चे और एक्टिव होते हैं कहीं बाहर आके, वरना घर में वही रूटीन्स हैं। तो यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छी है, वेल प्लान्ड है, सिक्योर है, सबसे बड़ी बात है, और हर किस्म की एक्टिविटी है। इवेंट में जहां खाने के स्टॉल्स लगाए गए, वहीं फेस्ट में ड्रम सर्कल का भी खूब दौर चला। बच्चे और बड़ों सभी ने ढोल की थाप पर रक्स किया और फसा को सुरीला बनाया। फेस्टिवल के शुरा ने कहा कि बच्चों के लिए जिस्मानी सरगर्मियां बहुत जरूरी हैं। इस तरह के फेस्टिवल का इनेकाद खुश आइंद है। किड्स फेस्टिवल में जहां बच्चे एंजॉय करते रहे, वहीं बड़ों को भी अपना बचपन याद आने लगा। कैमरामैन शहरियार अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। कराची के 22 साला आर्टिस्ट मुनीबुर रहमान ने मुख्तलिफ फिल्मों के सुपर हीरोज़ को कैनवस की जीनत बना दिया। रंगों के इस्तेमाल और नफासत ने फनपारों को असल का रंग दे दिया। सईद उबैर राशिद की रिपोर्ट। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे औरंगी टाउन के एक ऐसे होनहार तालिब इल्म से जिसका ये दावा है कि उसने पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कैनवस की स्पाइडरमैन की पेंटिंग जो है वो तैयार की है। तो आइए मेरे साथ चलिए।
जब ब्रश किसी मुसव्विर के हाथों में आता है तो फिर कैनवस पर ऐसे शाहकार उभरते हैं कि बेइख्तियार दाद देने को जी चाहता है। कुछ ऐसा ही आलम है कराची के 22 साला मुनीबुर रहमान के बनाए गए फन पारों का। जामा कराची शोबा कंप्यूटर साइंस UBIT के तालिब इल्म मुनीबुर रहमान को बचपन से ही स्केचिंग का शौक था। 1.5 साल कबल बाकायदा तौर पर मुसव्वरी का आगाज किया तो मुख्तलिफ फिल्मों के हीरोज को उन्होंने अपना मौजू बना लिया। मैं स्केचिंग करता था, एज ए पेंटिंग की तरफ मैं उस तरफ नहीं आया था, लेकिन जब स्केचिंग वगैरह करता था तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो मैं बिल्डअप होता गया। लेकिन 1.5 साल पहले ही मैंने देखा कि मैंने जब इसको एज अ प्रोफेशनली स्टार्ट किया, जैसे पेंटिंग वगैरह किया, तो मेरे अंदर जो है वो इतनी एक्सपीरियंस्ड क्वालिटी आ गई कि मैं जो हूँ 1.5 साल के अंदर जो है मैंने इतनी डिटेल्ड पेंटिंग कर ली। आर्टिस्ट मुनीबुर रहमान ने दावा किया कि 6 माह के दौरानिये में बिना किसी तरबियत के वाटर कलर की मदद से मशहूर कैरेक्टर स्पाइडरमैन का फनपारा बनाया, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग है, जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अप्लाई करेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए स्पाइडरमैन को दिया है कि मैंने मतलब ये दावा किया है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग स्पाइडरमैन की बनाई है, जिसको मुझे इंटायरली अप्रॉक्स जो 6 मंथ लग गए हैं और 400 आवर्स लग गए हैं इसको कंप्लीट। मुनीब मजीद सुपर हीरोज को भी कैनवस की जीनत बनाने का इरादा रखते हैं। उनके बनाए गए इन शाहकारों पर न सिर्फ शहरकाए पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से उन्हें पजीराई मिल रही है। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के साथ साथ मुनीबुर रहमान फनून लतीफ़ा से भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। हिम्मत, लगन और जज्बा हो तो यकीनन हुनर और ख्वाब बाय तकमील तक जा पहुँचते हैं, और यही मिसाल मुनीबुर रहमान की उभर कर हमें दिखाई देती है। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। सदर कराची बिजनेस फोरम एंड थिंक टैंक राशिद अहमद सदीकी का ईरानी कौंसल जनरल के एजाज़ में एशाया। इस्लामी जमहूरिया ईरान के कराची में तैनात कौंसल जनरल हसन नूरियान ने तकरीब से खिताब किया। क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। All of the sanctions which were imposed against Iran by the United Nations Security Council has been lifted after 2015 deal between Iran and 5+1. So there is no legal internationally sanctions against Iran. But the second types of sanctions which are imposed against Iran is unilaterally sanctions which are imposed by United States of America. And regarding the international law, these types of the unilateral sanctions are not legal, but there is a pressure from Western countries and most importantly from America, because they are superpowers and they are imposing and dictating their policy against other countries. In Iran, we are importing so many items which can be provided from Pakistan. In Iran, we are importing rice, basmati rice. We are importing the meat from Brazil and so many Latin American countries. We are importing so many agricultural foods like wheat, the mangoes, the citrus, quinoas, the garments, the fabrics, and so many other productions can be easily provided from Pakistan. But unfortunately, the Iranian people, they have not enough. इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।